साथी बनावी दुनियाने रस्तो तावी होशने जोशनो मेळ छे अहीं विश्वासनी आ नवी दुनिया कहीं शून्यथी शिखर सुधीनी आ कहानी हिम्मत मेहनत ने विश्वासनी निशानी एक नाम रिजवान अड़ातिया अड़ातिया થેન્ક યુ ફૂલ તૈયારી સાથે તમે આવ્યા છો બહુ મહેનત કરી તમે ઓહ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ સર આટલી મોટી સંખ્યામાં આવવાનું કારણ શું છે મારો પ્રેમ તમને ખેંચી આવ્યો છે કે બિરયાનીનું અનાઉન્સમેન્ટ મને લાગે છે મારો પ્રેમ તમને બધાને લઈ આવ્યો બરાબર ને મુકી સાહેબ બિરયાની કેન્સલ બધા ભૂખા જશે અને મારા લેક્ચર પછી બધા પરોળી આવશે મારા માટે બહુ ખુશીની વાત છે કે આટલી મોટી સંખ્યામાં તમારી પ્રેઝન્સ અને આટલું માન સન્માન પ્રેમ જો કે હું એટલો લાયક નથી પણ આ બેન એટલી બધી તૈયારી સાથે આવ્યા હતા એટલે આપણે કંઈ એને બોલી ન શક્યા પણ આપણે ઇસ્માઇલી બધા એક ફેમિલી છીએ એક જમાત છીએ મૌલાના બધા આપણે રૂહાની બચાવો છીએ
એટલે આપણે હંમેશા જ્યાં પણ જઈએ ત્યાં એક ફેમિલીની જેમ આપણે વાતો કરતા હોઈએ છીએ, ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ, સવાલ જવાબ કરતા હોઈએ છીએ. અત્યારનો જે ટાઈમ ચાલી રહ્યો છે અને આપણે જોઈએ છીએ દિવસે દિવસે ટાઈમ બદલતો જાય છે અને વધારે ને વધારે આપણે કહીએ ચેલેન્જિંગ ટાઈમ, વધારે ને વધારે ખરાબ સમય આવતો જાય છે એવું આપણને લાગી રહ્યું છે અને એવું થઈ પણ રહ્યું છે. બરાબર છે ને? 20-30 વર્ષ પહેલાંનો જમાનો અલગ હતો. પ્યાર મોહબ્બત હતી, આપણી પાસે રિસોર્સિસ ઓછા હતા, પૈસા ઓછા હતા, પ્રોપર્ટી, ધન દોલત, એજ્યુકેશન ઘણું બધું ઓછું હતું, છતાં પણ એક મોહબ્બત હતી, એક યુનિટી હતી, એક લાગણી હતી અને એક જમાતની જેમ આપણે એક ફેમિલીની જેમ રહેતા હતા. પણ છેલ્લા 20-30 વર્ષથી આ જેમ જેમ સમય પસાર થતો જાય છે એમ ઘણું બધું ચેન્જીસ આવતું જાય છે. પેશન્સ ખલાસ થતું જાય છે, માણસો ઉપર પ્રેશર વધતું જાય છે, સ્ટ્રેસ, ટેન્શન અને ડિપ્રેશન જેવી બીમારીઓના શિકાર થતા જાય છે અને ઘણું બધું બની રહ્યું છે હરેકના જીવનની અંદર. હવે આવા જીવનની અંદર ને આવા તકલીફભરા જીવનની અંદર બી આપણે કેવી રીતના મૌલાના સુખરની સાથે એક સારું જીવન જીવી શકીએ એના ઉપર આજે આપણે 1-1.5 કલાક જેટલો બી સમય આપણી પાસે છે એમાં આપણે ડિસ્કસ કરશું. તમે જોયું મારું મૂવીનું પ્રમોશન બતાવ્યું, તમને વિડીયો બતાવ્યો, એની અંદર વધારે ને વધારે તમને એ સાંભળવા મળ્યું સુખર છે વ્યાધિ નથી, સુખર છે વ્યાધિ નથી, સુખર છે વ્યાધિ નથી. બરાબર છે? તો હું તમને એક નાનકડી સ્ટોરી સંભળાવીશ. આપણને બધાને ખબર છે ખુદાના રસૂલ હજરત મુસા પૈગંબર કોહેતુર પર અલ્લાહ સાથે વાતો કરવા જતા હતા. યાદ છે ને? આપણે વાઇઝમાં સાંભળ્યું છે કે અલ્લાહના રસૂલ અલ્લાહ સાથે વાતો કરતા હતા. તો એક દિવસ અલ્લાહની સાથે વાતો કરવાનો સમય થયો ને જઈ રહ્યા હતા તો એક પૈસાદાર માણસ, એક અમીર માણસ એને રસ્તામાં મળે છે અને હજરત મુસાને કહે છે અલ્લાહના રસૂલને કે તમે અલ્લાહ સાથે વાતો કરો તો મારો એક મેસેજ તમે અલ્લાહને પહોંચાડો. તો મેસેજ એણે એ આપ્યો કે અલ્લાહને તમે કહો કે હવે મને દેવાનું બંધ કરે. મને એટલી બધી ખુદાએ બરકત આપી છે કે મારી 7 પેઢી ખાઈ લે તો એ ખૂટે એમ નથી. તો હવે મારી ઈચ્છા છે કે અલ્લાહ મને દેવાનું સ્ટોપ કરે. હવે જેટલું સુખર કરું એટલું ઓછું છે, કેમ કે મને ખુદાએ બહુ આપ્યું છે. તો અલ્લાહના રસૂલે કીધું ઠીક છે, હું તારો મેસેજ અલ્લાહને પહોંચાડી દઈશ. પછી જઈ રહ્યા હતા તો રસ્તામાં એક ગરીબ માણસ એને મળે છે અને હજરત મુસાને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે મેં 3 દિવસથી આ ખાધું નથી, મારી પાસે કપડું પહેરવાનું કપડું એક જ છે તન ઢાંકવા માટે, મારી પાસે કાંઈ નથી, હું દુઆઓ માગું છું, ખુદાને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે મને કંઈક તું આપ, હું 3 દિવસનો ભૂખો છું પણ મારી દુઆ ક્યાંય અલ્લાહ સાંભળતો નથી અને મારી હાલત દિવસે દિવસે ખરાબ થતી જાય છે. તો અલ્લાહના રસૂલે કીધું ઠીક છે, હું તારો મેસેજ પણ અલ્લાહને પહોંચાડી દઈશ. અને પૈગંબર મુસા ગયા, અલ્લાહ સાથે વાતો કરીને પાછા આવ્યા તો જે અમીર માણસ હતો, કરોડપતિ માણસ કે જેણે અલ્લાહને મેસેજ મોકલ્યો, તેણે પૂછ્યું કે અલ્લાહના રસૂલ શું ખુદાએ જવાબ આપ્યો? તો મુસા પૈગંબરે ફરમાવ્યું, સાંભળજો ને, આપણા બધાના દિલમાં જવાબને ઉતારવાનો છે. મુસા પૈગંબરે ફરમાવ્યું કે અલ્લાહે મેસેજ આપ્યો છે કે તું અલ્લાહના શુક્રાના અદા કરવાનું બંધ કરી દે તો હું તને રોજી દેવાનું બંધ કરી દઈશ. શું કીધું? શુક્રાના અદા કરવાનું બંધ કરી દે તો હું તને રોજી દેવાનું બંધ કરી દઈશ. તો ઓલો અમીર માણસ કે શુક્રાના અદા કરવાનું તો પોસિબલ બંધ ન કરી શકું, કેમ કે એટલું મને ખુદાએ આપ્યું છે કે એના હું આખી જિંદગી શુક્રાના અદા કરું તો પણ ઓછા છે. ઠીક છે. પછી જેમ આગળ ગયા તો ઓલો ફકીર માણસ, ગરીબ માણસ હજરત મુસાને મળ્યો અને પૂછ્યું અલ્લાહને તમે મારો સંદેશો પહોંચાડ્યો? તો હજરત મુસાએ કીધું યસ, મેં પહોંચાડ્યો અને અલ્લાહે કીધું છે કે તું મારા શુક્રાના અદા કરવાનું ચાલુ કરી દે કે તને તન ઢાંકવાનું કપડું આપ્યું છે ને, બીજા એવા લોકો છે કે એની પાસે એક કપડું પણ નથી. તો તું ખુદાના શુક્રિયાના અદા કરવાનું ચાલુ કરી દે, કમ્પ્લેન બંધ કર તો ખુદા જરૂર તને બરકત આપશે. તો આપણે શું કરવાનું છે? આમાંથી લેસન એ લેવાનું છે કે હર હાલમાં આપણને ખુશ રહેવાનું છે.
હર હાલમાં આપણે ખુદાના શુક્રિયા અદા કરવાનું છે અને આપણે એ ભરોસો રાખવાનો છે અને એ વિચારવાનું છે કે દુનિયામાં આપણા જેવી જિંદગી જીવવા માટે બીજા કરોડો લોકોના એક સપનું છે. જેટલી આપણી સારી જિંદગીને જેટલું આપણને ખુદાએ આપ્યું છે ને એટલું બીજા લોકો પાસે નથી. તો આપણે કમ્પ્લેન, ફરિયાદ કે મારા જ ઉપર શું કામ દુઃખ, મારા ઉપર જ શું કામ બીમારી, એની જગ્યાએ આપણે બને એટલો ખુદાના શુક્રાનંદા કરવા જોઈએ કે દુનિયામાં એટલી બધી મુસીબતો ને એટલી બધી બીમારીઓ છે, હજી આપણા સુધી પહોંચી નથી ને ઇન્શાલ્લાહ પહોંચશે પણ નહીં. આપણે તો ખુદાના શુક્રિયા અદા કરવા જોઈએ. બરાબર છે? બોલી એક કહેવત છે कि कभी अपने खुदा को ये मत बताओ कि मेरी मुश्किलियाँ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किलों को बताओ मेरा खुदा कितना बड़ा है. આપણે હજી એક સ્ટોરી સાંભળશું અને પછી આપણા યુથ સાથે ક્વેશ્ચન આન્સર છે, એમાં આપણે આગળ વધશું. અને આ સ્ટોરી એવી છે કે આપણે બધાએ આપણા જીવનની અંદર ઉતારવાની છે. કાલથી નહીં, આજથી નહીં, પણ અત્યારથી જ. બરાબર? સ્ટોરી એ છે કે એક પ્લેન જઈ રહ્યું હતું. આપણે એમ સમજીએ, આપણે બધા અહીંયા બેઠા છીએ ને હોલમાં, આપણે બધા અત્યારે પ્લેનમાં બેઠા છે. બરાબર છે? સમજવામાં અને વિચારવામાં કંઈ આપણને નુકસાની છે નથી. આપણે કંઈ ટિકિટ લેવાની છે નથી. આ ફ્રીમાં પ્લેનની સફર કરવાની કરવી જ ને આપણે બધાએ. ઠીક છે, તો આપણે બધા અત્યારે પ્લેનમાં સફર કરી રહ્યા છીએ. પ્લેન જઈ રહ્યું છે ઉપર 36,000 ફીટ ઉપર અને સડનલી ટર્બ્યુલન્સ ચાલુ થાય છે. પ્લેન હલવા માંડે છે. એટલે હલવા માંડે એટલે આપણે શું કરીએ? ડરવાનું ચાલુ કરીએ, બીક લાગવા માંડે. કેમ કે આપણે 36,000 ફીટ ઊંચાઈ ઉપર છીએ અને પ્લેન આમથી આમ હલે, ટર્બ્યુલન્સ થાય એટલે ઓબ્વિયસલી આપણને બધાને ડર લાગે. બરાબર છે ને? તો જેમ જેમ પ્લેન આગળ વધતું હતું એમ ટર્બ્યુલન્સ વધતું જતું હતું. જેટલા બી પેસેન્જર્સ હતા બધા બહુ ડરવા માંડ્યા, આંખ બંધ કરીને પ્રેયર કરવા માંડ્યા, પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા, દુઆઓ માંગવા માંડ્યા. એ બધાની વચ્ચે એક આઉટલિક 9-10 વર્ષની છોકરી બેઠી હતી. એ વિડીયો ગેમ રમતી હતી પ્લેનની અંદર. એ ગેમની સાથે સાથે એટલી ઓતપ્રોત હતી, સ્માઇલ કરતી હતી, રાડું નાખતી હતી, એક્સાઇટેડ થતી હતી અને આજુબાજુમાં લોકો બધા એટલા ડરેલા હતા કેમ કે પ્લેનનું ટર્બ્યુલન્સ વધતું જતું હતું. એમાં એ સડનલી પાયલોટે અનાઉન્સ કર્યું કે પ્લેનની હાલત એટલી છે કે ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડશે. તો લોકો વધારે ડરી ગયા, રાડું નાખવા માંડ્યા, રોવા માંડ્યા, ચિલ્લાવા માંડ્યા. પણ ઓલી 9-10 વર્ષની છોકરી બિંદાસ વિડીયો ગેમ રમવામાં બિઝી હતી. હસતી હતી, કૂદતી હતી, ઠેકડા મારતી હતી, એક્સાઇટેડ થતી હતી. આજુબાજુમાં બધા વ્યાધિમાં પડી ગયા કે હવે આપણને ખબર નહીં બચશું કે નહીં બચીએ. પણ પાયલોટની સૂઝબૂઝથી અને પાયલોટની અનુભવથી બહુ સરસ રીતના એને ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કર્યું અને બધા બચી ગયા. આપણે બધા બચી ગયા. બરાબર? હવે શાંત થઈ ગયું, પ્લેન ઊભું રહી ગયું, બધા શુકર કરવા માંડ્યા ખુદાના, ભગવાનના, જેને જે માનતા હતા એ. પણ એક ઓલી 9 વર્ષની છોકરીમાં જે બાજુમાં ભાઈ બેઠા હતા ને એને શાંતિ નથી થતી. એને ઓલી દીકરીને પૂછ્યું કે બેટા, આટલું ટર્બ્યુલન્સ, આટલું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, આટલું ટેન્શન હતું, પણ તું તારી ગેમમાં મશગુલ હતી, તું હસતી હતી, એક્સાઇટેડ હતી, તને ડર કેમ ન લાગ્યો? હવે આ તમે જવાબ સાંભળજો. જ્યારે છોકરીને 9-10 વર્ષની દીકરીને જ્યારે સવાલ પૂછ્યો તો દીકરી હસતા હસતા, બાજુમાં જે ભાઈએ સવાલ પૂછ્યો અને હસતા હસતા કહે છે કે અંકલ, જે પ્લેન ચલાવતા હતા ને, જે પાયલોટ છે ને, એ મારા ફાધર છે, મારા બાપા છે. અને મને મારા બાપા ઉપર એટલો વિશ્વાસ હતો કે મારા બાપા મને કાંઈ તકલીફ નહીં આવવા દે. બરાબર છે? આજે આપણે બધા પ્લેનમાં બેઠા છીએ. આપણો પાયલોટ કોણ છે? મોલા બાપા. તો આપણને કંઈ વ્યાધિ કરવાની જરૂર છે? ડરવાની જરૂર છે? નિંદર હરામ કરવાની જરૂર છે? નથી જરૂર. આપણને એને સોંપી દેવાનું છે. એના ઉપર આપણને ભરોસો કરવાનો છે કે દુનિયાના જેટલા બી ઉથલ પાથલ ચાલી રહ્યા છે, જેટલા બી આપણે તકલીફ, મુસીબત, બીમારી, અનિંદ્રામાંથી પાસ થઈ રહ્યા છીએ,
જેટલા બી ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ છે, બચ્ચાઓને લઈને પ્રોબ્લેમ છે, વહુને લઈને પ્રોબ્લેમ યા સાસુને લઈને પ્રોબ્લેમ છે, જેટલા બી આ બાજુ આવેલો જાવ જેટલા બી આપણે તકલીફ મુસીબત ચાલી રહી છે એ બધું બાપાને સોંપી દો, આપણા પાયલોટને સોંપી દો, એટલે બધું સારું થઈ જશે. એક કહેવત છે ને કે મોલા બાપા આપણને એ નથી આપતો જે આપણને ગમે છે, મોલા બાપા આપણને એ આપે છે જે આપણા માટે સારું હોય. તો આપણે એના ઉપર ભરોસો કરવાનો, એના ઉપર આપણે બધું એને છોડી દેવાનું. બને ત્યાં સુધી આપણે શાંતિની જિંદગી, ખુશીની જિંદગી જીવવાની આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ. હવે એક મેસેજ તમને આપું છું, બધાએ તમારા જીવનમાં ઉતારવાનું છે. હાલાકે બધું ઉતારવાનું છે, પણ કેટલું ઉતારશો? થાકી જશો. એક દિવસમાં તમે તો આવીને આવેલા જાય મોટી મોટી વાતો કરીને, પણ જીવનમાં અમે ઉતારીએ કેવી રીતના? બરાબર ને? તો આપણે એક કહેવત છે, એ કહેવત એવી છે કે જે મારા જીવનનો હિસ્સો છે. તમે ઘણું બધું આપણે સાંભળ્યું, આ બેને બહુ સરસ રીતે મારા બારામાં વાત કરી, એટલે મારા બારામાં આપણે યુથના સેશનમાં હું બોલીશ. પણ અત્યારે જે હું તમને આ કહેવા જઈ રહ્યો છું ને, એ મારા જીવનની અંદર નાનપણથી મેં ઉતાર્યું હતું ને આજે 40 વર્ષ થયા. આના ઉપર જ મારું જીવન ચાલી રહ્યું છે. તમે બીજું બધું ભૂલી જાઓ, ખાલી આ હું 3 વસ્તુ તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું. એ મારું 40 વર્ષનું જીવન છે. અને આ તમે સાંભળ્યા પછી આગલા 40 વર્ષનું તમારા બધાનું જીવન હોવું જોઈએ. બરાબર છે? બધા એગ્રી છો? સાંભળતા નથી આ બરાબર ને? 40 વર્ષ મારા જીવન આમાં મેં કાઢ્યું છે અને તમે આટલો પ્રેમ મોહબ્બત આપો છો. હવે આગલા 40 વર્ષ તમે આના ઉપર જ જીવવાનું, બીજું બધું ભૂલી જાઓ. બરાબર છે? તો આપણે ચાલુ કરીએ છીએ. 3 પોઈન્ટ છે જેને તમારે બધાએ જીવનમાં ઉતારવાના છે. બચાવ તમારે ઉતારવાના છે. ઉતારશો ને? ગુજરાતી સમજો જ ને મારું? તો વાંધો ન, ખાલી મમ્મી પપ્પાનું જ સમજો જ ગુજરાતી, કે લડાઈ કરતા હોય નહીં ને. પહેલી વસ્તુ એ છે, પહેલી વસ્તુ જે મારા જીવનનો હિસ્સો છે 40 વર્ષ થયા, એ પહેલી વસ્તુ એ છે કે 10 કામ છોડીને એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ. 10 કામ એટલે 10 બહાના. સવારે વહેલું ઉઠાય નહીં, બહાર કેમ વોક કરવા જાવ, સ્કૂટર વાળા ધક્કો મારી દે, ગાયું ભેંસું આટા મારતી હોય, એક્સરસાઇઝ કેમ કરવી, એવા 10 જાતના બહાનાને સાઈડમાં રાખી અને ગમે એમ કરીને થોડીક વાર આપણને એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. કેટલા લોકો રેડી છે આ સાંભળીને કરવામાં? તમે ઘરે યોગા કરી શકો છો, તમે ઘરે ઠેકડા મારી શકો છો. ભલે તમારી વહુ કે મમ્મી શું કરે, તો તમારા સામે એમ કહી દેવાનું તું એ કર ને તો જલ્દી બુઢી થાય છે. 10 કામ છોડીને જેટલા હાથ ઊંચા કર્યા છે એ બધાએ કાલથી 10-15 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. હવે કહેવત છે ને કે ઇન્સાન જેટલો હાલે એટલો તંદુરસ્ત રહે, અને જેનું મન જેટલું શાંત રહે એટલું તંદુરસ્ત રહે. અત્યારે આપણે બધા ઊંધું કરીએ છીએ. હાલવાનું ઓછું છે, યોગા ઓછા છે યા બંધ છે, અને ઓવર થિંકિંગ, મનથી વિચારવાનું વધારે છે. હવે કાલથી આપણે શું કરવાનું છે? ઊંધું કરવાનું છે. થોડા યોગા 10 મિનિટ, એક્સરસાઇઝ જે પણ ઠીક લાગે, પણ એક કમિટમેન્ટની સાથે, એક ડિસિપ્લિનની સાથે, જીવનનો એક ભાગ સમજીને. આજે હું 40 વર્ષ થયા વોક કરું છું. કેટલા વર્ષ? 40 વર્ષ થયા. છેલ્લા 20-22 વર્ષ થયા યોગા કરું છું. કેમ? કે મારા માટે સારું છે, મારી તંદુરસ્તી, મારા જીવન માટે, મારા ભવિષ્ય માટે મારે સારું છે. બરાબર છે ને? તો આપણે બધા એગ્રી થયા પહેલા પોઈન્ટમાં કે 10 બાના મૂકી સાઈડમાં અને આપણે એક્સરસાઇઝ કરશું. હવે બીજું, અને આ હકીકત પણ છે, બીજું એ છે કે 100 કામ મૂકીને, કેટલા? 100 કામ મૂકીને સવાર સાંજ જમાતખાને જાઓ, જિકર તસ્બીહ કરો, ગિરિયાઝારી કરો, ઇબાદત બંદગી કરો. કેટલા કામ મૂકીને? 100 કામ. 100 કામ નથી, 100 બાના છે. આજે નાયું નથી ને, આજે આળસ આવે છે ને, આજે સિરિયલ જોવી છે, આજે બચ્ચાઓને લઈને બહાર જવું છે, મારા દીકરાનો ફોન અમેરિકાથી આવવાનો છે. આ બધા એવા 100 જાતના બાનાને મૂકીને આપણે સવાર સાંજ જમાતખાને જઈ ઇબાદત બંદગી, દુઆ તસ્બીહ કરવાની છે. આજે હું પરોળી અહીંયા જમાતખાને આવ્યો હતો,
ગણીને જેન્ટ્સ સાઈડ, લેડીઝમાં તો મને ખબર નથી, તો એ લેડીઝમાં 20-ની જમાત લાગતી હતી, પણ મેં ગણ્યા નહીં. પણ જેન્ટ્સમાં તો ગણ્યા ખાલી 14 જણા હતા. કેટલા? 14 જણા. અને મુખી સાહેબને મેં પૂછ્યું, મુખી સાહેબ આપ કેમ ઓછા છે? 14 જણા તો બહુ ઓછા કહેવાય, તમે તો કીધા 1000ની જમાત છે. મને કહે તમારો પ્રોગ્રામ છે ને એટલે બધા બરાબર રેસ્ટ કરી લે. આ એ મારા ઉપર. ચાલો, એ બાને પણ તમે અહીંયા આવ્યા છો એ સારી વાત છે. પણ આવતીકાલથી આપણે ચાલુ બેતુલ ખ્યાલના મુખિયાણીમાંને કહી દઈએ સુકરીતની 4 પ્લેટ વધારી નાખે. બરાબર? હા પાડ્યા? ના પાડ્યા? હા પાડ્યા ને. આમાં ખબર નથી પડતી, આમાં હું કરે મુખિયાણીમાં સામે જ બેઠા છે. મુખિયાણીમાં ખુશ થઈ ગયા કે હા હવે દુઆ પડાવવા વાસ્તે ફરમાન વાસ્તે ગોતવા નહીં પડે, મળી જશે. ઓકે, બે ડીલ થઈ ગઈ. હવે ત્રીજી ડીલ છે, લાસ્ટ, સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ આપણું જીવન હોવું જોઈએ. જેવી રીતના તમે મારું સાંભળ્યા, કેટલું બધું બોલ્યા, તમને વિડીયોમાં ઓલું બતાવ્યું આપણી સેવ લઈને. ત્રીજી વાત બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમારા દિલમાં આ 3 ઉતારવાની છે. પણ સૌથી વધારે જો કોઈ ઉતારવાની હોય ને તો આ ત્રીજી વાત છે કે 1000 કામ મૂકીને સેવા કરો. કેટલા કામ? 1000 કામ મૂકીને, એટલે કે 1000 બાના મૂકીને સેવા કરો. ઉંમર ગમે એવી હોય, અને ખાલી જમાતખાનાની સેવાની વાત નથી કરતો, જમાતની સેવાની વાત નથી કરતો, તમારી સોસાયટીની સેવાની વાત નથી કરતો. હું વાત કરી રહ્યો છું જમાતની અને જમાતની બહાર પણ 1000 કામ મૂકીને સેવાનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આપણે બધા વાયેજમાં સાંભળે છે, બચ્ચાઓ કદાચ નહીં સાંભળ્યા હોય. જ્યારે અલ વાયેજ મિશનરી સાહેબે મૌલાને જ્યારે પૂછ્યું કે ખુદાવિંદ તું રાજી થા તો શું દે, તો કે સેવા. વધારે રાજી થતો વધારે સેવા. ત્રીજી વાર પૂછ્યું વધારે રાજી થતો તો મૌલા કે વધારે સેવા. તો તમે વિચારો કે મૌલા પપ્પા એમ ન કીધું કે હું એને બંદગી દઉં, બંદગીમાં દીદાર દઉં, એને હું રોજ સવાર સાંજ જમાત ખાને, એને હું કરોડપતિ બનાવી દઉં, એના ઘરમાં ગાડી બંગલા. મૌલાએ કાંઈ ના કીધું. એક જ વસ્તુ મૌલાએ કીધી, હું સેવા. તો 1000 બહાના મૂકીને, 1000 કામ મૂકીને આપણે સેવા કરવાની છે. જ્યાં પણ પણ સેવાનો ચાન્સ મળે આપણે બધાએ એનો લાભ લેવાનો છે, એનો ફાયદો ઉપાડવાનો છે. તમારા ખિસ્સામાં આજે 100 રૂપિયા છો ને તમે રસ્તામાં ક્યાંય જઈ રહ્યા છો અને તમને લાગે કોઈ નીડિયા છે, કોઈ પરેશાન છે, દુઃખી છે, કોઈને જો, હું એમ નથી કહેતો કે તમે 100 રૂપિયા આપી દો, પણ 100 માંથી 10, 20, 30 રૂપિયા કાઢીને આપી દો. ભલે કોઈ ના જોતું હોય, 2 લોકો તો જોઈએ જ છે. યાદ રાખજો, 2 લોકોમાં કોણ છે? એક તમારો અંતરાત્મા, એક તમારો પરમાત્મા. આ 2 જોઈ છે કે તમે શું કરી રહ્યા છો. તમે 10 રૂપિયાની હેલ્પ કરો, તમે 5 રૂપિયા આપો, તમે 2 રૂપિયા, 50 રૂપિયા, જેટલી બી તમારી કેપેસિટી હોય, અને તમે કોઈને જો તો તરત જ તમે કંઈ ખાવાનું લઈ દો, બિસ્કિટ લઈ દો, કાંઈ પણ દિલની અંદર એ ભાવ હોવો જોઈએ 24 કલાક કે મારે લોકોની સેવા કરવી છે. ત્યારે તમે અચીવ કરી શકશો. આજે મારી સેવાની શરૂઆત ઇન્શાલ્લાહ આપણે સવાલ જવાબમાં લેશું. 1985માં મારો પહેલો પગાર મને મળ્યો તો 175 રૂપિયા મહિનાનો પગાર. એ દિવસથી મૌલાએ મારી સેવા ચાલુ કરી છે. 85 થી 2026 41 વર્ષ થયા મૌલાના, અને શુક્રાના અદા કરું તો મુખી કામડી અને જમાતના હું થેન્ક યુ કહું કે તમારા બધાની દુઆ, અમારા માવતરની દુઆથી આ સેવા અને મૌલાના રાજીપાથી સેવા થઈ રહી છે. અમારી કોઈ હોશિયારી નથી, અમારી પાસે કાંઈ નહોતું. 250 રૂપિયાથી સેવા કરેલી. આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે મૌલાએ અમને એક સારા લેવલ ઉપર પહોંચાડ્યા. તો એ બરકત ત્યાંથી જ છે. ક્યાંય ભણેલ ગણેલ નથી, ક્યાંય અમારા બાપ દાદા પાસે કાંઈ નહોતું. તો આજે આવ્યું ક્યાંથી? મૌલાની દયાથી, મૌલાની રહેમતથી. એટલે જ મૌલા કહે છે કે વધારે રાજી થવું તો વધારે સેવા દઉં. એકચ્યુઅલી મૌલા સેવા નથી દેતા, મૌલા સેવા કરવાના રિસોર્સિસ આપે છે આપણને. મૌલા સેવા કરવા વાસ્તે આપણને પૈસા આપે છે, આપણને ઘણું બધું આપે છે, બરકતો આપે છે, રહેમતો આપે છે કે તમે આપણે વધારે ને વધારે સેવા કરીએ. બરાબર છે?
તો અહીંયા આપણે મારું સેશન પૂરું કરીએ અને હવે આપણે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામમાં જઈએ. તમારે બધાએ પણ સવાલ પૂછવાના છે. તમે સવાલ નહીં પૂછો તો હું તમને સવાલ પૂછીશ ને તમે જવાબ નહીં આપો તો પછી હું પરોઢિયો તમારી 4 વાગ્યા પહેલા ઊભો રહીને વેઇટ કરીશ. બરાબર? यानी सर मेरा नाम ईशान हिरानी है. मैं पीडीयू से बीएससी डेटा साइंस कर रहा हूँ और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको पहली बार बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से आया था और आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट था जिसने आपकी सोच बदल दी हो? बहुत अघरो सवाल पहले पूछी लीधो. बिजनेस करने का आइडिया बचपन से ही एक ड्रीम था. जब मैं छोटा था तो पहले से ही जब मैं रिलीजियस बुक्स पढ़ता था वहाँ से मुझे जो सीख आती थी मानव सेवा की, खिदमत खल्क, इंसानों की सेवा की, तो वहाँ से ही दिमाग में आइडिया आता था कि बहुत मेहनत करूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा और बहुत लोगों की सेवा करूँगा. तो वो आइडिया देखो, हर चीज़ के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पैसा कमाना है तो क्यों कमाना है, शादी करनी है तो क्यों शादी करनी है, बाहर जाना है तो क्यों जाना है, पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है. हर चीज़ का क्वेश्चन मार्क के साथ उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. तो जब मैं अफ्रीका गया 1986 में, जहाँ मेरी तनख्वाह $200 थी, और जब मैंने वहाँ काम शुरू किया मेरे बड़े भाई के स्टोर में, तो दिमाग के अंदर वही था, बहुत मेहनत करना है, बहुत आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाना है. उसको ही मैं ड्रीम बना लिया था. मैं उसको ड्रीम करता था रोज और बहुत मेहनत करता था. और मेहनत के साथ डिसिप्लिन भी जारी थी. जैसे मैंने बोला कि योगा करता हूँ, वॉक करता हूँ और रीडिंग की हैबिट थी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आगे ले जाती थी. और स्लोली ग्रेजुअली जहाँ मेरे बड़े भाई के स्टोर में जॉब करा था वहीं पे मैं पार्टनर बना, वहीं पे मैं आगे बढ़ा, वहीं पे मैं चेयरमैन बना वो बिजनेस का. और 2012 से आज तक मैं वो चेयरमैन, ग्रुप का चेयरमैन हूँ. तो बिजनेस का आइडिया बचपन से ही था और हर एक इंसान के दिल में ड्रीम होना चाहिए. आप लोगों की माशाल्लाह यंग एज है और हमारे छोटे बच्चे भी बैठे हैं. बचपन से एक ड्रीम होना चाहिए कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ड्रीम ये है कि मैं एक दिन मालिक बनूंगा या मैं एक दिन बहुत आगे बढ़ूंगा. तो ये आइडिया आज तक चल रहा है. मेरा नाम रोशनी मेघानी है और मैं अभी बीए ऑनर्स साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से. और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके स्ट्रगल के दिनों में ऐसा क्या था जो आपको हिम्मत देता था, और जब सब कुछ मुश्किल हो जाता था तो आप खुद को कैसे संभालते थे? वेरी नाइस क्वेश्चन. देखो, जब हम लोग बिजनेस कर रहे थे तो लाइफ को भी देखो, सक्सेस सिर्फ बिजनेस या पैसे से नहीं आती है. सक्सेस का डेफिनेशन होता है बैलेंस लाइफ. तो बिजनेस करके पैसे कमाना वो एक सक्सेस का एक पार्ट होता है, सफल जीवन का एक भाग होता है. तो जब मैं बिजनेस में आगे बढ़ रहा था और बहुत सारी चैलेंजेस हमें पता थी क्योंकि आती थी, लेकिन जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रहते हो, खुद के ऊपर आपका जो विश्वास है उनको आप बिल्ड करते हो कि भाई जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा. एक तरह का जो माइंडसेट आप बना लो तो जो भी चैलेंजेस आती है, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो आप स्टेबल रहते हो, आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो, आप स्ट्रेस फील नहीं करते हो, क्योंकि आपको एक भरोसा होता है कि आज मेरे साथ गलत हुआ है लेकिन उसमें भी कुछ खुदा का कुछ भेद होगा, इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा मैसेज होगा, मुझे आगे जाके उसका कुछ फ़ायदा भी होने वाला है. मैं सिंपल स्टोरी आगे मैं शेयर करूँगा कि जब 91 में सिविल वॉर हुआ, 86 से हमने शुरुआत की थी छोटे से स्टोर से. 91 5 साल के अंदर कोंगो अफ्रीका में, जो दूसरे लोगों को जो जानते हैं उनको पता है, सिविल वॉर में हमारा सब कुछ चला गया. तो सब कुछ चला गया था, लेकिन हमारा जो आत्मविश्वास था वो नहीं गया था.
हमारे खुद के ऊपर भरोसा, हमारे मौला के ऊपर भरोसा, वो हमारे साथ था। वो तो जब इंसान की डेथ होती है तब जाता है, तो वो भरोसा ने हमें ताकत दी कि जो भी होएगा अच्छे के लिए होएगा, हम वापस मेहनत करेंगे, वो वापस कमा लेंगे। लेकिन जब ये सिविल वॉर हुआ, वो सब कुछ लूट गया, तो उसके बाद वहाँ रहना मुश्किल था, तो हम सब इंडिया चले गए। मैं और मेरे बड़े भाई भी पोरबंदर चले गए। मेरी उम्र तभी 93 की बात कर तो मेरी उम्र 22 साल की थी। 91 में जो लड़ाई हुई सिविल वॉर, मेरी उम्र 22 साल की थी। तो मैं पोरबंदर चला गया, वहाँ मुझे 3-4 महीना रुकना पड़ा। अभी कुछ काम पोरबंदर में तो था नहीं, छोटा सा टाउन था, छोटा सा गांव था, लेकिन वहाँ इतनी मेहनत करते थे, पोरबंदर में कुछ काम नहीं था। तो लकीली एक लड़की मिल गई और मेरी फ्रेंड बन गई, तो मुझे एक सपोर्ट मिल गया। दोनों हम लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, और ऐसे 2-3 महीना हम लोग साथ में थोड़ा बहुत घूमे, इधर उधर करके टाइम स्पेंड करा, और वापस अफ्रीका सही हो गया तो मैं वापस अफ्रीका चला गया। और वापस मेहनत करके, जैसे मैंने बताया कि आत्मविश्वास और खुद के ऊपर भरोसा और हमारे मौला के ऊपर भरोसा था, तो हमें कोई फिजिकली या मेंटली कोई इतनी तकलीफ नहीं हुई। एक भरोसे के साथ हम वापस गए और वापस मेहनत करके हमने वापस बना लिया। क्लियर? सर, मेरा नाम इशिका विरानी है और मैं कमी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर रही हूँ। और मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अक्सर कहते रहते हैं कि थिंक बिग करो, बड़ा सोचो, तो आपके हिसाब से दुकान माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट में क्या फर्क है? और यूथ को और जमात को अगर आगे बढ़ना हो तो हमें कौन सी ऐसी सोच है जो बदलनी पड़ेगी? ये बहुत अच्छा सवाल है, इनके लिए सब तालियां। ठीक है, ये सिर्फ यूथ का सवाल नहीं है, जैसे उसने बोला ना, पूरी जमात का ये सवाल है, और सवाल बहुत ब्यूटीफुल है। देखो, सबसे पहले तो माइंडसेट की बात की, सबसे पहला हर एक का जीवन में ड्रीम्स होने चाहिए। ड्रीम्स कि हमारी आदत नहीं होती, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ड्रीम्स कैसे करें, रेगुलर ड्रीम कैसे करना होता है। ठीक है, हर कोई ड्रीम्स की बातें करते हैं, हर कोई बोलते हैं ड्रीम्स करो, बड़े ड्रीम्स करो, बड़ी बड़ी सोच रखो, जैसे आपने बोला बड़े एम रखो, लेकिन कैसे आगे बढ़े? देखो, ड्रीम्स है ना, वो एक बीज की तरह होता है। झाड़ का जो सीड होता है ना, बीज, तो आप बीज तो पहले बोना पड़ेगा। आपको झाड़ को बड़ा करना है, आपको फ्रूट्स चाहिए, तो सबसे पहला काम बीज बोना पड़ेगा। जो बीज नहीं होगा तो झाड़ नहीं बनेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल झाड़ लेके आए तो काम हो गया, लेकिन बगैर बीज आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहला होता है ड्रीम करो, लिखो कि आपको जीवन में क्या अचीव करना है, कहाँ पहुंचना है। हर एक चीज का आपके पास ड्रीम होना चाहिए। आपकी फैमिली को, लाइफ को लेकर, आपका एजुकेशन को लेकर, आपको बिजनेस को लेकर आपका ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम्स मीन्स गोल सेटिंग हुआ। आज मेरे जीवन के अंदर आपने जो सवाल पूछा, तो मेरे पास 1 साल का गोल है, 3 साल का गोल है, 5 साल का गोल है, 2050 तक का भी मेरे पास विजन है कि 2050 तक मुझे क्या करना है ना, वो मुझे पता है। मेरे मोबाइल के स्क्रीन में मैंने लिख के रखा है कि 2050 तक मुझे इतना अचीव करना है मुझे। तो क्या है, वो आपको मोटिवेशन देता है। अभी ड्रीम्स तो आपने करना शुरू कर दिया कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा बिजनेस करना है, जीवन में बहुत पैसा कमाना है, लेकिन आपने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, काम शुरू नहीं किया, तो आपका ड्रीम मेरे लिए एक ड्रीम हो जाएगा, कोई उसका फायदा नहीं है। आपने सीड डाल दिया, अभी आप उसको पानी नहीं दोगे, नर्चर नहीं करोगे, उसका ख्याल नहीं रखोगे, तो वो बीज सूख जाएगा, मर जाएगा, तो आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा भविष्य वो नहीं है जो भविष्य आने वाला है, हमारा भविष्य वो है जिनको हम खुद बनाते हैं। आज मैंने 40 साल पहले या 30 साल पहले या 25 साल पहले मैंने अपने भविष्य को खुद ने बनाया है। ये कोई रेंडमली बना हुआ मेरा फ्यूचर नहीं है। आप मुझे यहाँ आपके सामने देख रहे हो, माशाल्लाह इतनी बड़ी संख्या में जमात आई हुई है, तो आप मुझे देख रहे हो, तो ये ऐसे ही नहीं मैं पहुंचा हूं यहाँ। आज मेरी उम्र 57 ईयर्स है,
मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, लेकिन शुक्र है मैं फील करता हूँ कि मैं नहीं हुआ हूँ। सही है मैं, बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है कि ड्रीम के साथ आपका जब एक्शन होगा और उसके ऊपर आप काम करोगे तो आप कितने भी चैलेंजेस आएगी आप बाउंस बैक कर सकोगे। अब पीछे भी जाते हो, जैसे हमारे सिविल वॉर हुई 91 में हम लूट गए, मेहनत किया, वापस पैसे बनाए। 93 में सब कुछ अच्छा था तो वो मेरी जो फ्रेंड थी ना वो मेरी वाइफ बन गई, तो शादी करने आए तो वापस सिविल वॉर हुआ तो वापस आधा पौना लूट गया हमारा। अभी यहाँ मेरी शादी चल रही है, वहाँ हमारा लूटफाट हो रहा है, लेकिन बोला कि शादी एक ही बार करनी है तो कर लेने दो, पैसे कमा लेंगे मेहनत करके। सच्ची बता रहा हूँ, ये हकीकत है मेरे जीवन की। मेरी वाइफ भी आएगी नेक्स्ट टाइम, आप पूछ लेना उनको। तो हमारी शादी की पूरी रस्म हमने किया, लूटफाट गया, लूटा वो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि वो जो ड्रीम करता था, वो ड्रीम के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो मुझे भरोसा था कि मैं वापस खड़ा हो सकूंगा। तो मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके जितने यंगस्टर बैठे हो, जमात में भी जो लोग बिजनेसमैन और बिजनेस वीमेन है, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप ड्रीम बनाओ, लिख के रखो और आप भरोसा करो। आज मैंने बोला 2050 तक का मेरे पास लिखा हुआ है, तो ये 2050 तक का मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। समझ रहे हो? ये लिखा हुआ खाली लिखा हुआ नहीं है तुम लोगों को दिखाने के लिए, ये मेरा भविष्य वहां पहुंचने के लिए है। और इंशाल्लाह 2050 में हम वापिस मिलेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि देखो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। और आज भी मैं यहाँ पहुंचा हूँ और इतना मान सम्मान प्रेम मिल रहा है, तो वो 30-40 साल पहले मैंने किया हुआ ड्रीम, उसके ऊपर काम करते गया और मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। इसके लिए मैंने वो जो 3 चीजें आपको बताई थी ना, 10 काम छोड़ के एक्सरसाइज, 100 काम छोड़ के जमात खाना, इबादत बंदगी, 1000 काम छोड़ के सेवा, वही मेरे ड्रीम अचीव करने में वो 3 चीजें मुझे आज तक मदद कर रही है। और इंशाल्लाह 2050 तक मेरे ड्रीम अचीव करने में मुझे मदद करेगी। सही है? ठीक है, गुड। मौलाना, मेरा नाम मुस्कान बाबरिया है और मैं अभी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हूँ जेजी यूनिवर्सिटी से। और मेरा आपसे सवाल है कि अगर आज कोई यंग पर्सन या जमात का मेंबर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो तो आप उसे सबसे पहली सलाह क्या देंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, स्टार्ट शुरू करना है, सबसे पहले मैं बोलूँगा स्टार्ट शुरू करने से पहले एक चीज़ आप देख लो कि आपकी इसमें स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इसके अंदर लर्निंग क्या है। क्योंकि आप स्टार्ट शुरू कर रहे हो, आपके पास लिमिटेड फंड है, लिमिटेड रिसोर्सेस है आपके पास, तो आप घाई नहीं कर सकते हो, आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हो। पहली चीज़ आपको सीखना है, समझना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है कि अभी मैं ये शुरू करूँगा तो उसमें है ना फेलियर होने का चांस कम हो जाएगा। क्यों? कि आपके पास लर्निंग आ गई है। भले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है शायद, क्योंकि आप छोटे हो और आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो प्रैक्टिकल आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट एटलीस्ट आपके पास कुछ लर्निंग है। वो लर्निंग से आप फेल होने का चांसेस कम हो जाएगा और फेल होने की जगह पे आप कोशिश करोगे कि आप जो भी आप शुरू कर रहे हो उसके अंदर आप आगे बढ़ सको। तो अच्छी बात है बिजनेस करना, क्योंकि हमारी जमात में ज़्यादातर लोग बिजनेस में ही जाते हैं। जैसे हम बचपन से बिजनेस में गए, तो इस हमारी जमात में और हमारे जो 48 इमाम सुल्तान मोहम्मद साहब थे, वो पहले से, वो टाइम पे मैं उनके बहुत फरमान पढ़ता था, वो पहले से गाइड करते थे कि जॉब बड़ी भले आपको मिलती है, लेकिन छोटा बिजनेस हो तो छोटा बिजनेस से शुरू करो। बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो आप बड़े कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन बिजनेस आप छोटा सा शुरू करोगे तो आपका आगे जाने के लिए आपके पास काय कूड़ा पड़ा है, पूरा जितना चाहो इतना आगे जा सकते हो। ठीक है, अभी ज़माना चेंज हो गया है, बहुत साल पहले का ये मौला की गाइडेंस थी, आज के ज़माने से हमें चलना है, क्योंकि बहुत सारी कंपटीशन ज़माना है, बहुत सारी चैलेंजेस है। वो आप देख रहे हो कि डिजिटल
वर्ल्ड के अंदर आप लोग बड़े हो रहे हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक एक स्टेप सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, राइट? तो सर मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी आपकी वैल्यूज है जिन पर आप किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहोगे, और उसका रीजन क्या है? एक लाइन में पहले तो मैं आपके बताऊं, और जमात को और आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका जीवन का हिस्सा होना चाहिए, वो है मी टाइम। क्या है? मी टाइम, मेरे लिए समय। आपने जो वैल्यूज की बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास मी टाइम होगा तो आप खुद से बातें करेंगे, खुद को समझ सकोगे, खुद को प्यार करेंगे, खुद की स्ट्रेंथ ही पता चलेगा। आज मेरे पास मिनिमम एवरीडे 20 मिनट्स मेरे लिए है। 20 मिनट 24 घंटे में कोई भी निकाल सकता है, निकाल सकते हैं ना हम चाहे तो, बराबर है ना? 20 मिनट कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। लेकिन हम लोग आज बिलीव नहीं करोगे, आज हम लोग 2 मिनट भी हमारे लिए नहीं निकालते आज की सिचुएशन में। चाहे वो यंगस्टर होवे, चाहे मिडिल क्लास मिडिल एज होवे, चाहे बड़े उम्र के होवे, कि 2 मिनट भी हमारे लिए नहीं, हमारे बीवी बच्चों के लिए है, मौला के लिए है, हमारे बिजनेस के लिए है, सबके लिए है, हमारे माँ बाप के लिए है, दादा दादी के लिए है, सबके लिए, लेकिन हमारे लिए 2 मिनट 20 मिनट नहीं है। तो वैल्यूज कहाँ से सीखेंगे? जब हमारे पास मी टाइम होगा, सही तरह यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे? यूज करेंगे खुद से बातें करके। मैं तंदुरुस्त हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं शांत हूं, ऐसी जब पॉजिटिव बातें करेंगे, कोई नहीं सुन रहा है, आप मिरर के सामने, आईना के सामने खड़े होकर बात कर सकते हो। आप बाइक में जाते हो तो कर सकते हो, घर में अकेले हो, कहीं पे भी आपको मिल जावे कि आप अकेले हो, खुद से बातें करो। बहुत लोगों की हैबिट होते हैं सॉन्ग गाते हैं, वो मी टाइम होता है ना, सॉन्ग की आदत होती है, खाना पकाते सॉन्ग गाते हैं। मेरी वाइफ की भी आदत थी, अभी चली गई, तो ऐसी आदतें होती है। तो ये आदतें अच्छी आदत है, क्योंकि इनको बोलते हैं मी टाइम। तो आपने जो वैल्यूज का जो सवाल पूछा ना, वो कहाँ से आएगी? वो हमारे अंदर से आएगी। जब हम खुद को टाइम देंगे, खुद को डेवलप करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, और वही वैल्यूज आगे जाके हमें हेल्प करेंगी हमारे सब एक्शंस में। जो भी एक्शंस लेंगे, चाहे हम पढ़ाई में, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, सब लोग यूनिवर्सिटी और इसमें आगे बढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर, बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ो, पढ़ो एंड तक। हमारा 40 साल पहले का ज़माना अलग था, पढ़ाई लिखाई का इम्पोर्टेंस नहीं था, पढ़ाई लिखाई का कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई हमें मेंटोर नहीं था, कोई हमारे पास कुछ नहीं था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं था, तो हम पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन आज के टाइम में पढ़ाई लिखाई एक मौका है आपके लिए, बाकी तो सब धोखा ही है। तो पढ़ाई लिखाई आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिशियंस एंड बहुत लोग मिलते हैं, बहुत बार हम बात करने का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, बात करने का जो तरीका होता है, बात करने की जो एक भाषा होती है, वहाँ बहुत बार हमसे गलती होती है, और गलती का रियलाइज हमें जब हो जाता है, निकल जाते हैं मीटिंग करके, उसके बाद हम रियलाइज करते हैं, तो हमें अफसोस होता है कि काश हम पढ़ सकते होते, तो आज ये चैलेंजेस हमें फेस नहीं करनी पड़ती। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो वैल्यूज़ की बात किया, और उसका रीज़न दिया, वैल्यूज़ तो हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारी इंटीग्रिटी और हमारे ऑनेस्टी, ये तो हमारा जीवन का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो एजुकेशन है, या हमारे जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, या हमारे जो फैमिलीज वैल्यूज़, या हमारी कम्युनिटी के वैल्यूज़ है, वो सब हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और मैं एज अ मैनेजर वर्क करता हूँ, इज रिस्पेक्टेड फॉर्म, एंड आल्सो मेरी स्टडी की कंट्री है, कंटिन्यूस बिकम ऑनर। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आजकल बहुत लोग एंजाइटी में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, खास करके यूथ। तो सर आप पर जब कोई प्रेशर आता है, तब आप ऐसा, तो आपने क्या हैबिट्स आपकी जो आप अपनी लाइफ में मेंटेन करते हो, जो बैलेंस में रखते हो, और ना काम नहीं करते? ये जो
ये जो सवाल पूछा ना, ये पूरी दुनिया के यूथ का सवाल है, सही है ना? इसका रीज़न क्या है? देखो आप, मैं जनरल यूथ की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। आज के यूथ और हमारे यूथ में, और हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें जो फ़र्क है ना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि आज का यूथ में अब देखे जाए ना, तो सबसे पहली चीज़ जो मिसिंग है ना, वो मिसिंग है पेशेंस, सब्र नहीं है। बहुत ये बड़ी चैलेंज है, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। दूसरा जो है, यूथ के ऊपर पीयर प्रेशर बहुत है, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके ऊपर प्रेशर है। थर्ड थिंग जो यूथ का है ना, उसमें बहुत सारी जगह पे यूथ को सही डायरेक्शन नहीं है और यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो हमारे टाइम पे नहीं थी। और दूसरा मैंने बोला ना कि मी टाइम हमें बहुत हेल्प करेगा। क्यों? कि मी टाइम से अपना बॉडी को, अपना मेंटल स्टेटस को, अपना स्पिरिचुअल जो हमारा है, उनको हम रेगुलर प्रैक्टिस से हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। और रेगुलर प्रैक्टिस से जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी, तो नहीं एंजाइटी होगी, नहीं डिप्रेशन में जाएंगे, नहीं हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। क्यों? कि हमने अपने आप को वो लेवल तक डेवलप किया है। और जैसे मैंने बताया, मेरी एज कितनी बोली मैंने? 57। लेकिन आज तक मैंने जीवन में कभी डिप्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं किया। इसका कारण क्या है? मैं कोई बाहर के प्लैनेट से नहीं आया हूं, राइट? तालियां बजानी है, बजा दो। ये मेरे लिए नहीं बजाई, आप खुद के लिए बजाइए कि आज के बाद नो मोर डिप्रेशन इन किसी की लाइफ में। सही है? नो मोर स्ट्रेस। मैंने स्ट्रेस का भी अनुभव नहीं किया, वो भी आपको बता दूं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं शर्माता नहीं हूँ बोलने में, क्योंकि मेरा मकसद है आपको प्रेरणा देना, आपको इंस्पायर करना और आपको सही रास्ता देना। अभी यहाँ मैं बोलूँ कि मैं बड़ाई नहीं करूँगा, तो बड़ाई नहीं है ये। आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ ऐसे भी जी जा सकती है। तो जितने भी मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत मैंने देखा। बहुत लोगों ने सुना था, अफ्रीका में 6 साल पहले मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, अपहरण वाला हादसा। अब में से बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी। तो यही दुआ है जो ताकत देती है। तो आज आप लोगों की दुआ से हम सही सलामत है। तो हम खुद ही हमारे लिए दुआ करें, दूसरों के लिए रोज दुआ करें हम लोग, तो कितनी ताकत हमें भी मिलेगी। तो ये जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, अनिद्रा है, ये हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। ये हमारे समाज में है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हमारे मौला अभिलाष जो दीदार दिए थे, और वहाँ मौला बोलते हैं कि आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मुझे पता है बहुत चैलेंजेस चल रही है, बहुत क्राइसिस चल रही है, बहुत बुरा समय चल रहा है, फिर भी मौला ने, ये रहीम साहब माँ बाप की बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहला का फरमान है, आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। तो अल्लाह का शुक्रिया, मैंने कहानी सुनाई, याद है ना हजरत मूसा पैगंबर की? उसको बोलो शुक्राना अदा करता रहे तो उनको मैं बरकत देता रहूंगा। और गरीब को भी बोला कंप्लेन मत कर, फरियाद मत कर। वो कहते हैं ना, शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करने से जिंदगी खुशियों में बदल जाती है। तो हमें सिर्फ शुक्रिया करना है। तो हमारे जीवन में ये जो सवाल पूछा भाई साहब ने, यूथ को लेकर, एंजाइटी, डिप्रेशन को, प्रेशर को लेके, वो सब चीज हमारे जीवन में नहीं आएगी। हर सिचुएशन में हम अपने आप को नॉर्मल बैलेंस रख सकेंगे। जो अपने आप को मी टाइम देके थोड़ा खुद से बातें किया, थोड़ा इबादत बंदगी, थोड़ा तस्बीह और थोड़ा खुद के ऊपर भरोसा, थोड़ा मौला के ऊपर भरोसा करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ हमारी जमात में से निकल जाएगी इंशाल्लाह। ये सबसे बड़ी मुसीबत, ऐसी तो बहुत सारी मुसीबत आई है, लेकिन हमने एक ही चीज़ सीखा है, हमेशा खुदा का शुक्रिया अदा करो।
मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा आपके सवाल के ऊपर। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, उसके बाद हम सवाल को आगे ले जाएंगे। कि एक बाप बेटा था, बाप बुजुर्ग था और उसका जवान बेटा था, और उनके पास 5 घोड़े थे और अपना जीवन चल रहा था। सडनली एक घोड़ा भाग गया, तो एक पड़ोसी आया, आके वो बुजुर्ग आदमी को बोलते हैं कि आपके तो नसीब ही खराब है, देखो आपका घोड़ा भाग गया। तो बुजुर्ग उनको बोलते हैं, वो उनका पड़ोसी को, कि जीवन में जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। मेरा बिलीव यही है कि हमेशा नसीब अच्छा ही होता है। तो वो पड़ोसी चला गया। 3-4 दिन हुआ तो वो घोड़ा वापस आया, लेकिन साथ में घोड़ी को लेके आया। तो वापिस पड़ोसी आया कि देखो आपके नसीब तो अच्छा है, आपका तो घोड़ा भाग गया था, लेकिन ये तो घोड़ी को लेके आया, तो आपके लिए तो ये अच्छा हुआ। वापिस बुजुर्ग ने वही बोला, देखो मेरे हिसाब से तो नसीब हमेशा अच्छा ही होता है, और जीवन में जो भी होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो वो पड़ोसी वापिस चला गया। अभी 3-4 दिन हुआ तो वो जो घोड़ी आई थी, उसने उनका जो जवान बेटा था उसको लात मारा, तो वो बेटे का पैर टूट गया और प्लास्टर आया और बेड में चला गया। वापिस वो पड़ोसी आया। हर जगह पे पंचायत तो होती है, बराबर ना मुखी साहब? तो वापिस वो बुजुर्ग आके पंचायत करने आए, देखो आपके तो नसीब ही खराब है, आप तो बोल रहे थे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो आपके बेटे का पैर तोड़ दिया एक घोड़ी ने। वापिस बुजुर्ग ने वही 2 लाइन दोहराई कि नसीब हमेशा अच्छा होता है और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो बुजुर्ग वापिस चला गया। अभी वो देश के अंदर वॉर चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, उन लोगों के सोल्जर्स कम थे, तो जितने भी यंगस्टर थे गांव के अंदर वो सबको बाय फोर्स मिलिट्री में ले जाते थे। तो ये बुजुर्ग के घर पे भी आया उनको बेटे को उठाने के लिए, लेकिन उसका पैर टूटा हुआ था, प्लास्टर था, तो मिलिट्री वालों ने उनको नहीं लिया और वापिस चले गए। तो वापिस वो बुजुर्ग आया, वो पड़ोसी आया, वापिस आके बोला कि आपके तो नसीब अच्छा है, आपका बेटा बच गया, मेरे तो दोनों बेटों को मिलिट्री पुलिस वाले उठा के लेके चले गए लड़ाई के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, नसीब हमेशा अच्छा ही होता है। जितनी मेहनत ईमानदारी से करेंगे इतना हमारा भाग्य बनेगा, हमारा नसीब बनेगा, और जीवन में जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। बहुत बार, कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हमारे जीवन में बने जो हमारे अच्छे के लिए नहीं होती है, लेकिन हमारा पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आगे जाके हमारे अच्छे के लिए बन जाते हैं। तो दिमाग में, दिल में यही रखना है। हमारे साथ भी इतना उतार चढ़ाव आए, जो सवाल पूछा वो बहन ने कि ऐसी क्या बात हुई, तो ऐसे बहुत सारी मुसीबतों में से हम पास हुए हैं। अब हमारी मूवी यूट्यूब पे रिजवान मूवी प्लीज़ आप देखना, उसमें पता चलेगा कि हमने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे, कितने मुसीबतों का सामना किया, लेकिन हमने कभी जमात खाना नहीं छोड़ा, कभी सुबह की इबादत नहीं छोड़ी, कभी हमने सेवा नहीं छोड़ी, कभी मौला के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा, कभी हमने जो भी डिसिप्लिन हमने रखी है वो 40 साल से कभी हमने उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तब जाके हम आज प्राउड के साथ आपके सामने बैठ के हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अकेले होते हैं हमारा दिमाग अपने आप ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देता है, हम नेगेटिव थॉट्स अपने आप हमारे दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स डिफिकल्ट सिचुएशंस सबकी जिंदगी में होती है, तो हम उससे कैसे कोप अप कर सकते हैं और हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है, और ये सवाल बहुत बार मेरे पास आया भी है। बहुत लोग मुझे ये सवाल करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को ये सवाल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग, आज हम सोने जाते हैं तो हमारा थॉट्स, विचार हमारा चलता रहता है। एक साइड हम याली याली करते हैं, सलवात पढ़ते हैं, दूसरी साइड हमारा ये जो विचारों की साइकिल चलती है। तो बहुत बार सोचते हैं कि हम याली याली करते हैं, सलवात पढ़ते हैं, तो भी हमें नींद नहीं आती है।
नींद नहीं आती है, इसका कारण सलवात या याली याली करके नहीं आती, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका जो विचार का पावर है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है याली याली और सलवात से। इसके लिए हमें नींद की चैलेंज है। ओवर थिंकिंग की बात की ना, तो ओवर थिंकिंग हमारी चल रही है और दूसरी साइड हम याली याली कर रहे हैं, तो याली याली हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस ओवर थिंकिंग पे चल रहा है। और एक बात सबको याद रखना है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक साइड बोले मैं याली याली करूं, सलवात पढ़ूं सोने के टाइम पे, दूसरी साइड हमारा विचार स्टॉप ही हम नहीं करना चाहते या करते नहीं है, तो नींद की चैलेंज रहेगी और सुबह जमात खाने उठने के में तकलीफ ही पड़ेगी। तो ये सवाल का मैं जवाब आपको दूंगा और जवाब में आप सबको अपने जीवन में कोशिश करनी है इसको उतारने का। जो मैंने बचपन से बहुत सालों से इसके ऊपर मैंने काबू किया है, इसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, सुबह जमात खाने में पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, सलवात याली अहमद, उसको 2 मिनट के लिए हम साइड में रख के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये खाली सोने के टाइम पे नहीं है, ये दिन में भी चलता है जैसे आपने सवाल पूछा। तो सबसे पहले कोशिश करनी है अपने को शांत रहना है, काम रहने की कोशिश करनी है। स्लोली ग्रेजुअली थॉट्स तो चलते हैं, क्योंकि रोज के 50-60 हजार थॉट्स आते हैं 24 घंटे के अंदर हर एक इंसान के थॉट्स में। तो पहले कोशिश करनी है शांत रहने की। जब शांत रहने की हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम थॉट्स की कंट्रोल करने के लिए शांत रह के एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम दीवार खड़ी करेंगे, धीरे धीरे हम दीवार खड़ी करेंगे, जितना हो सके इतना पेशेंस से शांत रह के दीवार खड़ी करेंगे और उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली हम याली या सलवात से हमारे थॉट्स के ऊपर अटैक करेंगे। हम समझ में आ रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, जमात सीरियस हो रही है इसके लिए, बट मैं कोशिश करता हूं उसको आसान बनाने की। तो हमें क्या करने का है कि हमें शांत रहने के लिए हमें कोशिश करनी है कम से कम हम अपने बोले या कम से कम हम मुंह बंद रखना है। एक अच्छी सी कहावत मैं बताता हूँ, शायद आपने सुनी होगी, ये बहुत बार ये यूज हुआ है वर्ड्स, बस नहीं भी सुनी है तो आपको अच्छी लगेगी कि जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां हैं, ये आपका सवाल का जवाब आएगा कि जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां हैं, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और खुदा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। तो अभी थोड़ा मुझे लगता है ताली पड़ी तो आसान हो गया समझना। तो अपने को थोड़ा शांत रहना है, शांत रहने की कोशिश करना है। देखो जब ओवर थिंकिंग होती है ना, तो बहुत बार हम गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, न करने का कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो टाइम पे हमारा थॉट्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और एक गुजराती में एक कहावत है कि हवाना प्रदूषण करता विचारों प्रदूषण વધારે खराब है। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना, वो विचारों का प्रदूषण है जो सबसे ज्यादा खराब है। उसमें से हमें निकलने के लिए, इसके लिए मैं बार बार मी टाइम कर रहा हूँ। जितना ज्यादा खुद से बातें करेंगे इतना ज्यादा अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर आप काबू कर सकोगे। जब कॉन्शियस माइंड के ऊपर जब आप काबू करोगे तो आपके लिए ये ओवर थिंकिंग वाला पार्ट स्लोली ग्रेजुअली आपके जीवन में से निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं वो 3 चीज जो आपको बार बार बोल रहा हूँ, और अपने खुद से बातें करने के लिए आप में क्रेजीनेस होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। मैं आज सुबह की बात करूं, आज सुबह मैं जमात खाने से होटल गया, मुझे जल्दी निकलना था गांधीनगर जाने के लिए, तो मेरे लिए बीच में आधे घंटे का टाइम कुछ करने का नहीं था। 6 बजे आ गए, 8 बजे निकलना था, 2 घंटे में नाश्ता नहाया तैयार होके भी मेरे पास आधा घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा थी। आज सुबह की बात कर रहा हूँ, जमात खाने में बैठ के मैंने क्या किया, मैं कर सकता था वीडियो देख सकता था, रील्स देख सकता था सोशल मीडिया में, मैं यूट्यूब में जाके वीडियो देख सकता था, बराबर है ना, आपके पास टाइम है तो ऐसे ही चीज कुछ करेंगे ना। लेकिन मैंने क्या चूज किया,
मैंने चूज किया खुद से बातें करने का, खुद से टाइम स्पेंड करने का। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं उसका आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि आज सुबह की बात है, मैंने खुद से बातें करना शुरू किया। मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम ए विनर, आई एम द बेस्ट। ये सारी चीज़ आप जब खुद से बातें करते रहेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली आप विनर बन जाओगे। आपका ये ओवर थिंकिंग वाला पावर है ना कम होता जाएगा। एक कहावत है कि हजारों लड़ाइयाँ बाहर जीतने से बेहतर है आप खुद को जीत लो, फिर वो जीत आपकी होगी। सही। थैंक यू सो मच सर, इस कॉन्वर्सेशन से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली और डेफिनेटली हम इसको अप्लाई भी करेंगे हमारी जिंदगी में। आप अकेले ही अप्लाई करेंगे, जमात अप्लाई करेंगे? सब करेंगे ना, ये तो थैंक्स सारी आपकी बात में सब इतनी खो गए हैं ना कि शायद और क्वेश्चन आंसर, बट मुझे एक सवाल से पूछना था कि आप जब लाइफ की शुरुआत की और अब टाइम बहुत चेंज है, राइट? तो पेरेंट्स जो आपकी करते थे वो आपने किया, तो मैं ये जानती हूँ कि अभी की यूथ को, पेरेंट्स को आप ऐसा क्या बोलना चाहेंगे कि आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है जो हम लोग रखते हैं, जो आप रखते हैं? थैंक यू वेरी मच। देखो, वही मैं यूथ को बोलना चाहूँगा कि आपकी जो एज है, यूथ की जो एज है ना, एक सीरियसली मैं बताऊँ ना तो एक ब्लेसिंग है। क्योंकि यहाँ से आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी, यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी तो आप प्रोफेशनली जॉब में जाओगे, कोई बिजनेस में जाओगे, कोई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कहीं पे आप जाओगे, तो प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपकी शादी होगी तो एक आपकी फैमिली बनेगी, आप एक मैच्योर इंसान बनोगे, और कल जाके आपके बच्चे हुए, आप बिजनेस में आगे बढ़े तो आप एक मैच्योर, एक एडल्ट बन जाओगे। तो ये यूथ की जो एज है ना, वो एक फाउंडेशन है आपके आगे की जीवन का। अभी ये फाउंडेशन को आप जितना पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव आप बनाओगे उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर अच्छा होगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक बुजुर्ग आदमी बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत प्रेयर्स करता था, बहुत लोगों की सेवा करता था, मेडिटेशन करता था, बहुत सारी चीज़ें करता था। तो भगवान परमात्मा प्रसन्न हुए। पहले के ज़माने में प्रसन्न होते थे हिंदू धर्म के अंदर, जो हमने पढ़ा है। तो उनको पूछा वो बुजुर्ग आदमी को कि मैं प्रसन्न हूँ तेरे ऊपर, मांग, मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू वरदान मांग। वरदान में समझ में आता है ना? तो उसने बोला, भगवान ने कहा तू, मैं प्रसन्न हूँ, तू एक वरदान मांग, मैं तुझे वो वरदान दूंगा। और बुजुर्ग ने हाथ जोड़ के भगवान को बोला, मुझे मेरी जवानी वापस दे दो। तो आज यूथ की जो जवानी है, तुम्हारी जो उम्र है, वो एक खुदा की तरफ से एक वरदान है। उसको, वही वरदान को, एक ब्लेसिंग है, वही ब्लेसिंग को आपको संभालना है, आपको उसका ख्याल रखना है, आपको सही डायरेक्शन में जाना है। मैंने पहले ही लाइन में बोला था कि पढ़ाई लिखाई मौका है, बाकी सब धोखा है आपके लिए। तो आप कोई धोखे में आपको जाना नहीं है। बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत सारे आपको लालच आएगी, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल या लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपको डाइवर्ट करेंगे, आपको दूसरे डायरेक्शन में ले जाएंगे। लेकिन आप लोगों को एक मक्कमता से, एक डिसिप्लिन के साथ आपकी ये एज को डेवलप करना है और संभालना है। यही मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि जब मैं छोटा था 15-17 साल की उम्र में, नो पढ़ाई लिखाई, नो मोटिवेशन, कुछ नहीं, ना पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन एक ही चीज़ मैंने सीखी थी वो यंग एज में, बड़े बड़े ड्रीम्स करना, मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना। और वही मेहनत, वही ड्रीम्स, वही मेरा ईमानदारी आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इंशाल्लाह आप सबको पहुँचाएगा। और जमात में भी बहुत सारे बिजनेसमैन है ऑलरेडी, और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि ये सब पूरा मैनेजमेंट एक अकेले आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर कुछ 2 या 3 चीज़ आप बोले कि इतना बड़ा एम्पायर मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आप
अपने अनुभव से हमें शेयर कर पाए, जो हमारे बिजनेसमैन को और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करे। आज के ज़माने में 24 घंटा है ना, बहुत है। इंसान चाहे ने तो बहुत कुछ कर सकता है। हम देख रहे हैं, हम तो क्या बड़े बिजनेस से, ठीक है आपने बोला कि आई रिस्पेक्ट यू, के बहुत हम बड़े बिजनेसमैन, तो अच्छा लगा, लेकिन हमें पता है। लेकिन यहाँ हम इंडिया के अंदर भी देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, हम नाम भी ले सकते हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, अदानी है, अंबानी है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े बिजनेस, उनके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे, और आप सबके पास भी सेम टाइम है। ओ मलाली मदद અમે તો આપણા સમાજની અંદર તમને જ એક સારા બિઝનેસમેન અને એક રોલ મોડેલ તરીકે જોઈએ છે, પણ તમે એનાથી પણ ઉપર નજર રાખવાની વાત કરી, એ સારી છે જમાત માટે. હવે મારો સવાલ તમને એક એવો છે કે આજે તમે 55 પ્લસ છો અને તમારી લાઈફમાં ઘણું બધું તમે અચીવ કરી ચૂક્યા છો, જે ઘણા બધા માટે હજી સપનું છે. હવે અમે દુઆ કરીએ અને ફરી જો તમે પાછા 20 વર્ષના થઈ જાઓ, આમીન, તો તમે જે આપણા હાજરીમાં અને ગતિમાં એજ્યુકેશનની તો વાત કરી છે, એના સિવાય એવી કઈ વસ્તુઓ તમે તમારી સાથે રાખવા માંગો છો જેથી કરીને તમે પાછા અદાણી અંબાણી બની જાઓ? એ જવાબને તમે ગાઈડ કરો. કમળ સાહેબ, તમે મને 20 વર્ષમાં કહીને આગળનું હું સાંભળી જ ના શકું, તો વયો ગયો તો પાછો 20 વર્ષમાં. મેં કીધું હમણાં 23 વર્ષે લગ્ન કર્યા હતા, તો મેં 3 વર્ષ પછી પાછો પ્લાન કર્યો. તો તમે જો અંબાણી, અદાણી યા એનાથી પણ આપણને આગળ વધવું, કમળ સાહેબ ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે કે એ બધી ચીજની પાછળનો તમારો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પૈસા કમાવા બહુ સારી વાત છે ને, કમાવા જોઈએ, સેવિંગ કરવી જોઈએ, બચાવ માટે સેવિંગ કરવી જોઈએ, બચાવને સારું એજ્યુકેશનમાં આપણને ખર્ચ કરવા જોઈએ, અને સાથે સાથે એ પણ ઓબ્જેક્ટિવ હોવો જોઈએ કે લોકોની સેવા પણ મારે કરવી છે. કાલ કરીશ નહીં, આવતી આવે ત્યારે નહીં કરું, આજ અભી શરૂ કરને કા. તો તમારો જે સવાલ છે, એ સવાલની સામે એક જ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે લાઈફનો ઓબ્જેક્ટિવ તમારો. આજે મને મોટું કામ કરવું, 2050 સુધી મને જીવનમાં ઘણું બધું અચીવ કરવું, ને તમે દુઆ કર્યા, આમીન, ઇન્શાલ્લાહ તમારી દુઆથી અચીવ થશે. પણ હું મારી હેલ્થને જો હું ન સંભાળું તો પછી હું અચીવ કરીને મારી લાઈફ કેવી હશે? હું હમણાં ગયા વીકની વાત કરું, એક માણસને મળ્યો, કરોડપતિ માણસ હતો ઇન્ડિયાની અંદર, શાયદ મુંબઈ યા ક્યાંય બીજી જગ્યાએ. તો એ માણસે મને દિલ ખોલીને વાત કરી. અમે 3 જણા હતા. એ કે રિઝવાનભાઈ, મેં જ્યારે હું જીવનમાં આગળ વધ્યો અને મેં એક નવો બિઝનેસ, કેમ કે મારી પાસે ફાઇનાન્શિયલ બહુ છે રિસોર્સિસ, તો મેં એક નવો બિઝનેસમાં મેં રોકાણ કર્યું, અને એ બિઝનેસ એટલો પ્રોફિટેબલ હતો કે મને ડાયાબિટીસ થઈ ગઈ. આ દિલથી હકીકત સંભળાવતો હતો મને, સાચી વાત, કે બિઝનેસ એટલો પૈસા બનાવવાનો હતો ને મેં બનાવ્યા, પણ પ્રોબ્લેમ એ આવ્યો કે મને ડાયાબિટીસ થઈ ગઈ, કેમ કે એનું પ્રેશર એટલું હતું કામનું, એટલું સ્ટ્રેસ લેતો હતો હું, અને એક પોઝિટિવ જાતું હતું પણ સ્ટ્રેસ એટલું હતું કેમ કે બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ હતો. તો કે મને ડાયાબિટીસ થઈ ગયું. તો મેં મેનેજ કરી લીધું. આજે બી હું મારી દવા ખાઉં છું ને ચાલે છે. હવે એને બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી, એના ફ્રેન્ડ સાથે કંઈક મળીને કંઈક, તો કે એ બિઝનેસમાં મેં રોકાણ કર્યું ને મને કોલેસ્ટ્રોલ થઈ ગયું. હવે ત્રીજો બિઝનેસ જે મારો હાલતો હતો, એ બિઝનેસની અંદર હું ધ્યાન ના આપી શક્યો ને એમાં ધ્યાન આપવા ગયો તો મારી નીંદર હવે હરામ થઈ ગઈ. તો હું હવે સૂઈ નથી શકતો. હવે તમે મને ગાઈડ કરો, આ હું શું કરું? હવે હું એને શું ગાઈડ કરું? એ માણસ તમે મને કયો કામ હશે, શું ગાઈડ કરું? એ પોતે કબૂલ કરે છે કે હું આટલું રોકાણ કરીને હું ડાયાબિટીસ થયો, આમાં રોકાણ કર્યું તો મને કોલેસ્ટ્રોલ આવ્યું, હવે મને નીંદર નથી આવતી કેમ કે મારી પાસે એટલું મોટું થઈ ગયું. તો હવે મારી પાસે કંઈ ગાઈડ કરવાનું હતું ને. પણ કહેવાનો મતલબ શું છે કે હરેક ચીજની અંદર, આપણા ડ્રીમની અંદર આપણે જે પણ વિચારીએ ને એની અંદર ઓબ્જેક્ટિવને સાથે તમે વિચારીને આપણને ચાલવાનું છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ બધા અદાણી અંબાણી કે આપણે બધા ઇસ્માઇલી, આપણે મૌલાના બધા રૂહાની ફરજંદો છીએ. જેટલું ધારીએ એટલું આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. અંકલને યુદ્ધ થવું લાગે પાછું.
Yes. My age 77. મને તો ખાલી 17 જ સંભળાણા છે. મને ખાલી 17 જ સંભળાણા, 77 ના જાણું. 70. Age is no number. યસ, વેરી ગુડ. યસ યસ Age is only number. યસ. હાલો. મેં તમારી જેમ લગભગ વિરોધી સ્ટ્રગલ કર્યું, પણ અમે એટલા સક્સેસ નથી. અને એનું કારણ કે મેં લિમિટેડમાં ગવર્મેન્ટ જોબમાં પડે. પણ મારે જે આટલા વર્ષના 50 વર્ષનો અનુભવથી એક ક્વેશ્ચન આપણા વખતમાં અને અત્યાર વખતમાં છે, એના માટે મારે આપણે સવાલ કરવો છે કે જ્યારે આપણો બિઝનેસનો ટાઈમ હતો કે સર્વિસનો ટાઈમ હતો, એ વખતે જે પ્રજા હતી ને એની અંદર પ્રેમ, એથિકલ, નૈતિકતા અને એવા જે માનવીય મૂલ્ય છે ને, ભારો ભાર ખાંસી ન કરે. અત્યારે કળજુગ ચારે બાજુથી એકદમ છોડ્યો છે અને જ્યાં જુઓ ને ફ્રોડ. એટલે કોઈ વસ્તુની અંદર આપણે નાનું કામ કરીએ છીએ ને, નાનું કામ તો શરૂઆતમાં આપણને મીઠા મીઠા વાયદા આપે. એટલે ઇથિકલ પ્રોબ્લેમ અને જે ગવર્મેન્ટના રૂલ છે, દાખલા તરીકે કોઈ પણ ઇન્ડિયાની અંદર મારા આદર્શોમાં કે જો ટેક્સ ચોરી ન કરે ને ચાલે. કોઈ પણ બિઝનેસ કારણ કે 70% એ કરવાના, ઈમાનદારી જાળવવાની, બધું જાળવવાનું, કરપ્શન દેવાનું, તો આ ઇઝ પોસિબલ. એટલે ઇન્ડિયાની અંદર એમ લાગે છે કે આ અત્યારના યુથ માટે તો ખાસ છે કે આ ચેલેન્જ સાથે કેવી રીતે આગળ વધવું. કારણ કે આપણા કરતા આ લોકોના સંજોગો બહુ કઠણ છે, બહુ કઠણ છે. હા, વારે વારે ફ્રોડ થશે, વારે વારે છેતરવાનું, વારે વારે અને સગાઈ છેતર છે, પોતાને ક્ષેત્ર છે, બીજા ક્ષેત્ર. એટલે આ જમાનો એવો કઠણ છે કે એની અંદર અનેક વાજા વારી અંદર વાગે, અકલ સ્વરૂપ થઈ ગઈ, દુનિયાનો લાગે. તો આ જમાનાની અંદર એવું શું છે જેથી કરીને આ બધું ચેલેન્જીસના બધા છતાં આપણે પ્રગતિ ચાલુ રહે. તાલિયા. મજા આવી ગઈ અંકલને સાંભળીને. હવે હું આગળ આ સવાલનો તો જવાબ હવે કરી નાખશું, પણ હવે આંટી પાસેથી, દાદી પાસેથી પણ કંઈ ઉમ્મીદ રાખશું. એકાદી દાદી કંઈક આવો જ સવાલ મીઠો મીઠો આપણને પૂછશે. સવાલ બહુ સારો છે, પણ દાદા આપણો જે જમાનો હતો ને એ ઓર્ગેનિક જમાનો હતો. આપણે ખાવાનું ખાતા હતા ને એ પ્યોર ખાવાનું હતું, ફ્રૂટ્સ ખાતા હતા પ્યોર હતું, શાકભાજી ખાતા હતા એ બધા પ્યોર હતા. હવે અત્યારે બધું મિલાવટવાળું થઈ ગયું છે. એટલે છોકરાઓ બિચારા ગમે એટલી મહેનત કરે પણ પેટની અંદર જાય છે એ બધું મિલાવટવાળું. તો છોકરા કરે શું? પણ આજનો ટેકનોલોજી દુનિયાની અંદર દાદા એક વસ્તુ એ છે કે છોકરાઓ ધારે ને તો ઓનેસ્ટી, ઇન્ટિગ્રિટી, ઈમાનદારીથી કામ કરી શકે એમ છે. કેમ કે ટેકનોલોજી એવી રીતના આ લેવલ ઉપર પહોંચી ગઈ છે. આપણે એઆઈની વાત કરીએ, ચેટ જીપીટી, યા જેટલા બી ટેકનોલોજી ટૂલ્સની વાત કરીએ, અને આ લોકો પૈસા કમાવાના રસ્તા પણ બદલી ગયા છે. આપણા જમાનામાં આવા કોઈ રસ્તા નહોતા. આ લોકો સોશિયલ મીડિયામાંથી પૈસા કમાઈ શકે, આ લોકો ટેકનોલોજીને યુઝ કરીને પૈસા કમાઈ શકે. તો પૈસા કમાવાના જે રસ્તા છે ને એ ચેન્જ થઈ ગયા છે. તો એની અંદર એ લોકો એથિકલ અને ઇન્ટિગ્રિટીની સાથે કામ કરી ગવર્મેન્ટના ટેક્સ ભરીને બી બે પૈસા કમાઈ શકે છે. હવે આજે અમારા બચ્ચાઓ, અમારી દીકરીઓ ધંધામાં આવે છે ને એ આ બધું જોઈ છે ને તો એ કહેશે કે પપ્પા આ શું કરો છો? આવી રીતના કંઈ ધંધા થાય? તો અમે કીધું ભાઈ આ 40 વર્ષથી આમ જ હાલે છે અને આ જ પૈસાથી તમે ભણ્યા છો. હવે તમે બરાબર ઈમાનદારીની વાત કરો તો હવે તમે આગળ જોઈ લ્યો તમે. તો ધીરે ધીરે એ ચેન્જીસ આવી રહ્યા છે. અને જેવી રીતના મોલા બાપાની કંપની છે 100% એથિક્સ ને ઇન્ટિગ્રિટી સાથે હલાવે છે અને દુનિયા આખીમાં હાલે છે. તો એવું નથી કે ન હાલી શકે. ગમે એટલી દુનિયામાં ફ્રોડ થતા હોય, ગમે એટલા ટેક્સ ચોરી થતા હોય, પણ ઇન્સાન ધારે તો ઈમાનદારીથી ટેક્સ ભરીને પણ બે પૈસા કમાઈને શાંતિથી સૂઈ શકે એમ છે. वो एक वैसी एज पे जो कि 25-30 की एज है, उसका जॉब लीव करके सब फंड्स मैनेज करके कैपिटल मैनेज करके बिजनेस में कैसे एंटर कर सकता है?
पहला सवाल क्या था मैंने थोड़ा मिस किया। सर बहुत सारी बिजनेस और बहुत सारी इंडस्ट्री अलग-अलग टाइप की, तो कौन सी फिल्टर आउट करके मतलब इसका पेंटर होना चाहिए, इसमें ज़्यादा स्कोप है, इस सब कॉम्पिटिटर्स बहुत है कि बिजनेस में जाना है, बिजनेस करना है, लेकिन स्कोप कहाँ है, क्योंकि आज बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारी क्राइसिस और बहुत सारी दूसरी चैलेंजेस भी है। तो जैसे मैंने आगे भी बताया, देखो बिजनेस करना आसान होता नहीं तो कोई जॉब नहीं करता। बिजनेस का भी एक कहते हैं ना, एक सिखाई होती है, कुछ सीखना पड़ता है। ऐसे ही बिजनेस में आप गए और बहुत स्टार्टअप्स फेल होते हैं, बहुत बार हम देखते हैं, बोलते हैं 80-90% जो स्टार्टअप्स होते हैं फेल होते हैं। फेल होने का कारण क्या है कि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं होता है, उनके पास खाली वो थ्योरी होती है, उनके उसने जो थोड़ा बहुत सीखा है और आइडिया आ गया और उसका विजन नहीं होता है, और प्लस उनके पास सही तरह का बेकिंग नहीं होता है कि भाई मैं फेल हूँगा या पीछे जाऊँगा तो मैं बाउंस बैक कैसे करूँगा, क्योंकि फेलियर आपको सिखाती है। लेकिन फेलियर होने के बाद आपके पास रिसोर्सेस होना चाहिए कि आप फिर बताइए जॉब करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जब मैं अफ्रीका गया 86 में, इससे पहले मैंने 1-1.5 साल पोरबंदर में जॉब किया था। शुरुआत में मैंने जॉब किया था तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, और मैंने तब बोला मुझे तनख्वाह भी मत दो, मुझे सिर्फ सीखना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो 2 महीने बाद वो मेरा जो सेठ बॉस था उसको शर्म आई कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रोज 12 घंटा काम कर रहा हूँ और 30 दिन बाद मैं उसको कुछ नहीं दूँ। तो भगवान से डरने वाला आदमी था, तो उसने 175 रुपीज़ मेरी तनख्वाह डिसाइड की। लेकिन वो 175 के साथ मुझे सीखता था मैं बिजनेस का आइडियाज जो भी छोटे मोटे। और अफ्रीका जाके मेरे बड़े भाई की शॉप में शुरू किया तो ऑलरेडी मैं मेंटली प्रिपेयर था। हालांकि वहाँ लैंग्वेज अलग था, वहाँ का कल्चर अलग था, वहाँ का बिजनेस का तरीका अलग था, लेकिन फिर भी मेरे लिए आसान था क्योंकि यहाँ से मैं 1-1.5 साल मेहनत करके सीख के कुछ गया था। तो बिजनेस करने से पहले थोड़ा सोच के, थोड़ा लर्निंग करके, थोड़ा रिसोर्सेज का रिस्क लेना, थोड़ा बैक में रखना। इनवाइट किया मुखी कांबळे साहब, चेयरमैन साहब और लीडरशिप, थैंक यू। आपने हमें मौका दिया आपकी जमात के साथ इंटरेक्ट करने का, और सारे यूथ का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत तैयारी की, इतनी मेहनत करके आपने आज अपने साथ इंटरेक्ट किया, क्वेश्चन आंसर किया, तो आप सबका भी शुक्रिया। और खाना बनाने वाले या खाने परोसने वाले या जो भी है उनका भी सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास शुक्रिया अदा आप सारी जमात का करना चाहूँगा। इतना प्यार मोहब्बत और 1.5 घंटे से आपने खामोशी से सुना। मुझे तो डर लग रहा था, मुखी साहब ने 3 दरवाजे खुले रखे, पता नहीं 1 घंटे में खाली हो जाएगा, बट हुआ नहीं। तो मुझे अच्छा लगा, मेरा डर था वो निकल गया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने खामोशी से सुना। और यही 1.5 घंटे में कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं जमात से माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी बोलने में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे हो जाता है, तो ऐसा कुछ हो तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा मेरी दुकान बंद करने से पहले, कि वो 3 चीज़ आपको याद रखनी है, करनी है, अपने जीवन में सीरियसली उतारनी है। 10 काम छोड़ के एक्सरसाइज, 100 काम छोड़ के जमात खाना और 1000 काम छोड़ के दुनिया भर की सेवा। सही है। और इंशाल्लाह मुखियानी में समझ गए, 2 प्लेट 4 प्लेट तो नहीं तो 2 प्लेट सुप्रीत की बढ़ेगी। और कल सुबह मैं 4 बजे से आके मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं अटेंडेंस पूरूंगा कितने लोग आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू याली मदद। थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू बोला, बट उससे पहले मैं सभी जमात को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग जोरदार तालियों से, और अगर खड़े रहेंगे तो उनको अप्रिशिएट करेंगे उनकी इतनी बड़ी लाइफ का एक्सपीरियंस सिर्फ और शायद जमात का जो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे नॉलेज देकर, बहुत सारा ऐसा नॉलेज दिया है जो कल से हम लोग जो शुरुआत कर सके, तो शायद रिजवान सर हम डेफिनेटली बन सकते हैं। सो अगेन हम लोग सर के साथ एक बार बताएंगे, बोलेंगे सबको कि भाई एक साथ सर के लिए
Thank you. Please maintain. Thank you very much. हम पीना चाहेंगे एक बार तालियों जैसे Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. ઇન્ડિયાની જમાત અને વર્લ્ડની જમાત જે પ્રમાણે તમે હાજરી પરના ફરમાનને ફોલો કરો છો, જે પ્રમાણે તમે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરો છો, તો ખાસ કરીને શાલમની જમાત એવી દુઆ કરે કે આ રિઝવાનની દુકાન અને તમારીથી પ્રેરિત થઈને આવનારા દરેક રિઝવાનની દુકાન ફૂલ ફ્લેજ ચાલે. રિઝવાન સરનું જે કામ છે ને એ આપણે જે મેં બીજનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, આપણે કહી શકીએ કે એક એપલ છે, સફરજન, એમાં કેટલા બીજ છે આપણે ગણી શકીએ, પણ એક બીજમાં કેટલા એપલ છે ને આપણે ક્યારે ના ગણી શકીએ. બરાબર? તો રિઝવાન સર જે કામ કરી રહ્યા છે ને એનું કાઉન્ટ કરવું, એના જે બ્લેસિંગ્સ છે, જે જમાત તરફથી જે લોકો તરફથી એમને મળે છે એ કાઉન્ટલેસ છે. ન્યૂટનનો એક નિયમ છે કે third law of Newton, there is an equal and opposite reaction. Every action there is an equal and opposite reaction. એટલે દુનિયાને તમે જે આપો ને એ મલ્ટીપ્લાય થઈને તમારી પાસે પાછું આવે. તો તમે જે સેવા કરો છો, રિઝવાન સર જે સેવા કરે છે, જે લોકોની લાઈફમાં બદલાવ લાવે છે, એનો અનેક ગણો સ્વભાવ છે ને મલ્ટીપ્લાય કરીને ઉપરવાળો એમને આપે છે. તો થેન્ક યુ સો મચ સર. અમારી શાળાની બધી જમાત તરફથી અમે બ્લેસ છે કે આજે તમારા જેવી હસ્તી અમારા જમાતખાનામાં છે અને મોટાનો લાખ શુકર છે. તમે ફરીથી અમારી પાસે આવજો અને આવી રીતે અમને મોટિવેટ કરતા રહેશો. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. Thank you, sir.